Can silence speak? In Tatra Vamiro, every pause tells a story that words can't carry. The river in Tatra Vamiro is not just water, it's a flowing memory. It carries pain, love, and loss silently. The woman by the river does not cry, does not shout, but her stillness is heavier than words. That's the strength of Mandloi's writing. Mandloi teaches us emotions don't always need expression. Sometimes feeling is the story. Hello children, I am your Gupsup ma'am. So welcome back to part 2 of Tatra Vamiro lesson. So this lesson is written by लीलाधर मंडलोई. मंडलोई ने यह पाठ लिखा नहीं, महसूस करवाया कि दर्द के लिए हमेशा शब्द जरूरी नहीं होते. कभी कभी खामोशी ही सब कुछ कह जाती है. Sometimes silence only says it all. तत्रा वामिरो सिर्फ एक कहानी नहीं, एहसास है. It's not just the story, it's a feeling जो हर उस दिल को समझता है जिसे कभी कुछ कहने का मौका नहीं मिला. It understands everyone who has still not got the chance to speak about a single thing. Today we will discuss in detail what happened next when Tatra and Vamiro were having conversation at the riverside. So children, we will move ahead. We'll move into the next page. After the explanation of part 1, we will read and explain more in detail of the next page. So let's begin. उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है. So she didn't understood. She didn't acknowledge that one stranger young man, ajnabi means stranger, yuwak means young man, and nishabd means speechless. So she didn't acknowledge that one stranger young man, he was speechless and continuously staring at her. एकाएक एक ऊंची लहर उठी. Suddenly one high strong wave arose और उसे भिगो गई. She got wet from that wave. वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई. हड़बड़ाहट मीन्स पैनिक. सो आउट ऑफ पैनिक शी फॉरगॉट टू सिंग. इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी. सो सामान्य मीन्स नॉर्मल और गूंजना मीन्स रेजोनेंस. गंभीर इज सीरियस, आकर्षक इज अट्रैक्टिव एंड आवाज इज वॉइस. So before she would have become normal, her ear heard one resonance, serious, attractive voice. तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? Here madhur means melodious. So Tatra asked to Vamiro, why suddenly you have stopped singing such a melodious song? तुमने इतना सुंदर, इतना मधुर गाना क्यों छोड़ दिया? Why you are not singing? तत्रा ने विनम्रता पूर्वक कहा. सो विनम्रता पूर्वक इज हम्बली. सो तत्रा आस्क्ड हम्बली टू वामिरो. अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई. सुंदर युवक मीन्स वन हैंडसम बॉय एंड विस्मित मीन्स अमेज. सो एज अ यंग एंड हैंडसम man is standing in front of her, she got amazed with his handsomeness. उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ. कोमल भावना मीन्स सम सॉफ्ट फीलिंग. तो एज वामिरो सॉ अ यंग हैंडसम बॉय इन फ्रंट ऑफ हर, शी गॉट अ सॉफ्ट फीलिंग इनसाइड हर. उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ मीन्स सम सॉफ्ट फीलिंग वाज गोइंग थ्रू इनसाइड हर. किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया. So Sayyadka means controlled. So somehow she controlled herself and out of harshness she answered him. पहले बताओ तुम कौन हो. First you tell me who are you. इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण. Why you are staring? घूरना means staring. And why you are staring at me? And why you are asking a question without any reason. Asangat prashna means without any reason. Why you are asking a question without any reason. अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों के उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं. So she is not restricted or not bound
Badhya means she is not bound to answer any person outside her village. So if any person belong to some other village, she is not bound to answer whatever the question the other person from other village is asking her. She is not bound to that. वो किसी और के गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वह बाध्य नहीं है, वो मजबूर नहीं है. शी इज नॉट बाउंड. यह तुम भी जानते हो. शी टोल्ड दैट यू ऑल्सो नो दिस. तथा मानो सुदबुद खोए हुए था. सो इट सीम्स तत्रा हैज लॉस्ट हिज सेंसेस. जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया. सो he has to give answer what Vamiro asked him, but in spite of that, he again asked the same question. तुमने गाना क्यों रोक दिया? Why you have stopped singing? गाओ, गीत पूरा करो. Sing and complete your song. सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है. Really, you have such a melodious voice. सुरीला कंठ means melodious voice. यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा. So Vamiro told to Tatra that this is not the answer for my question. सच बताओ तुम कौन हो? You tell me the truth. Who are you? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा नहीं. I have never seen you in Lapati village. तत्रा मानो सम्मोहित था. So Tatra is still attracted towards her. शी इज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन. वो इतना सारा सवाल पूछ रही है, किंतु तत्रा जो है वो अभी भी वामिरो की तरह सम्मोहित है, अट्रैक्ट है. उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी. सो हर वॉइस वॉज नॉट एबल टू रीच टू हिज ईयर. ओके. उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना. सो अगेन he requested, again Tatra requested, why you have stopped singing? Please sing. युवती झुंझला उठी. So she got very, she got annoyed. युवती झुंझला उठी. झुंझलाना means annoyed. Okay, she got annoyed with him. वह कुछ और सोचने लगी. And she was thinking something else. अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए खड़े स्वर में पूछा. सो एट लास्ट, अंततः मीन्स एट लास्ट, अंततः मीन्स एट लास्ट. सी डिसाइडेड एंड फर्मली विथ अ स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट हिम, शी अगेन आस्क्ड द क्वेश्चन. तो उसने फिर से दोबारा तत्रा से सवाल किया. ढीठता की हद है. सो ढीठता मीन्स स्टबर्न. So she is saying there is a limit to stubbornness. मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो. So she told that I am asking your introduction, who are you, from where you belong, but still you are asking me the same question that why I am not singing, why I am not singing. Rag means tune and alapna means continuously asking the same question. बार बार एक ही बात पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तुम क्यों गाना रोक दी. बार बार तत्रा वामिरो से पूछ रहा है कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ फिर से. लेकिन वामिरो उससे उसका इंट्रोडक्शन पूछ रही है, परिचय पूछ रही है. गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाओ का नियम नहीं मालूम? सो वामिरो टोल्ड दैट व्हाई यू आर आस्किंग मी अगेन एंड अगेन, सिंग द सॉन्ग, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? Do you don't know the reason of, do you don't know the rule? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी. सो शी टोल्ड, यह सब बोल के शी सडनली टर्न्ड फास्टली एंड शी वॉज अबाउट टू लीव. वह तेजी से मुड़ी, शी टर्न्ड फास्टली एंड शी वॉज अबाउट टू लीव. तत्रा को मानो कुछ होश आया. होश मीन्स consciousness. So somehow Tatra now regained his consciousness. उसे अपनी गलती का एहसास हुआ. So now Tatra felt his mistake. वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा. गिड़गिड़ाना means pleading. तो अब जब वामिरो वहां से जाने लगी, she was about to leave, Tatra stand in front of her and pleading, मुझे माफ कर दो, please, I'm sorry,
जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड लाइक दिस। मैं अपने जीवन में पहली बार इस तरीके से महसूस कर रहा हूँ, वरना मैं ऐसा नहीं हूँ। वह इस तरीके से तत्रा ने वामिरो को बोला कि फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम आई एम सच डिस्ट्रैक्टेड। प्लीज आई एम रियली सॉरी। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई। एज सुन एज आई सॉ यू आई हैव लॉस्ट माई कॉन्शियसनेस। चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। आई विल लीव योर वे। बस अपना नाम बता दो। डू ओनली वन थिंग, प्लीज टेल मी योर नेम। तत्रा ने व्यवस्था में आग्रह किया। सो आउट ऑफ हेल्पलेसनेस, व्यवस्था मीन्स हेल्पलेसनेस, तत्रा प्लीड टू हर, रिक्वेस्टेड हर। उसे पता था कि मे बी तत्रा, मे बी वामिरो उसे रिप्लाई करेगी, मे बी वामिरो उसे आंसर नहीं देगी। सो ही वॉज प्लीडिंग, ही वॉज रिक्वेस्टिंग दैट मे बी वामिरो, इफ ही इज रिक्वेस्टिंग, वामिरो विल आंसर हिम। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। सो हर हिज आईज वे ग्लांसिंग centered her, his eyes were centered towards the face of that beautiful lady. केंद्रित means centered. उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। ऑन हिज फेस इट वॉज अ रियल प्लीडिंग। वाह मी रो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। सो शी टोल्ड, वाह मी रो। सो एक रस घोलती आवाज मीन्स सम सोल स्टीरिंग वॉइस। He heard that soul stirring voice reached to Tatra's ear. Vamiro, वाह कितना सुंदर नाम है। So he told Vamiro, such a nice and beautiful name. सुंदर means beautiful. कल भी आओगी ना यहाँ। So again Tatra is asking to Vamiro that again you will come tomorrow. Tatra ने याचना भर स्वर में कहा। Again he is pleading because he knew it very sure. Maybe Vamiro will answer, maybe Vamiro will not come. But Tatra wanted to meet Vamiro again. So he is requesting. वो याचना कर रहा है that will you come again tomorrow? Now we will move into the next page. Let's see. नहीं, शायद कभी नहीं। So वामिरो बोली, नहीं मैं कभी नहीं आऊंगी, शायद मैं कभी नहीं आऊंगी। She was also in a doubt. वामिरो ने अन्य मनसकता पूर्वक कहा और झटके से लापाती की तरह बेसुध सी दौड़ पड़ी। सो वामिरो अनमनसकता पूर्वक मीन्स अनरीजनेबली। सो सी सडनली टर्न्ड एंड unreasonably means as why here it is written anmansakta purvak, because still Tatra is asking question. She could have told in a good way, but she was little bit hesitant to talk to him. So unreasonably she turned back and ran towards her village. Continuously, besud means continuously she ran towards her village. पीछे तत्रा के वाक्य गूंज रहे थे। तो behind her, I told you गूंजना means resonance or echo. So behind her, the sentence of whatever Tatra has asked to Vamiro, that sentence was echoing. Vamiro, मेरा नाम तत्रा है। So he told that my name is Tatra. कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। I will wait on this rock only tomorrow. तुम्हारी बाट जोहूंगा। I will wait for you. बाट जोहना means wait. जरूर आना, प्लीज कम। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तत्रा ने उसे जाते हुए निहारता रहा। सो बट वामिरो डिडंट स्टॉप, शी रैन, शी वाज कंटिन्यूअसली रनिंग एंड तत्रा वाज स्टेयरिंग एट हर। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। सो एज शी रीच्ड हर होम, शी वाज something feeling inside her, some emotions were running towards inside her. She was feeling restless. बेचैनी means restless. उसके भीतर तत्रा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। So like as she ran from Tatra and reached her home, it was feeling for her that she was having some false struggle. झूठी छटपटाहट means some false struggle. Why that false struggle is there?
that she is released from Tatra. Now Tatra is not near to him. Tatra उसके पास नहीं है, उसे भाग कर आई है. तो एक झूठी छटपटाहट है कि ओके मैं वहां से चली आई. आई एम रिलीज्ड फ्रॉम Tatra. नाउ ही इज नॉट इन फ्रंट ऑफ मी. एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया. सो आउट झल्लाहट में some emotional tantrum. Is out of emotional tantrum she shut the door और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया. एंड शी वॉज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ इन सम अदर डायरेक्शन. बार बार ततरा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता. सो एवरी टाइम हाउ ततरा वॉज प्लीडिंग टू हर, दैट फेस वॉज कमिंग इन फ्रंट ऑफ हर. उसके ततरा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी. इवन वामिरो हैज हर्ड मेनी स्टोरीज अबाउट ततरा. उसकी कल्पना से वह एक अद्भुत साहसी युवक था. सो हाउ मच शी नो अबाउट हिम, ही वॉज मोर अमेज्ड पर्सन एंड करेजियस पर्सन. किंतु वही ततरा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया. सो द सेम ततरा इन फ्रंट ऑफ हर, he came in some different form. शी हर यहाँ पे अलग रूप क्यों बोला जा रहा है कि लोग ने उसे बोला कि वह करेजियस इंसान है, ही इज अ करेजियस पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सन. बट नाउ इन फ्रंट ऑफ वामिरो ही इज अ प्लीडिंग, ही इज लाइक अ सॉफ्ट पर्सन. सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला. सो ही वॉज हैंडसम, स्ट्रॉन्ग, बट ही इज calm, ही इज सिविलाइज्ड. सभ्य मीन्स सिविलाइज्ड और भोला मीन्स इनोशंस. उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचते रहती थी. सो his personality was exactly same how Vamire used to feel about him about her partner, how she was expecting for her partner. So Tatra was exactly fitting in that, exactly fitting for his partner personality. किंतु एक दूसरे गांव में के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध. टू मेक अ रिलेशनशिप विथ पर्सन ऑफ सम अदर विलेज, इट वाज अगेंस्ट द कस्टम. अतः उसने एक भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा. सो शी फेल्ट दैट शी शुड forget about her because it was a rule that she cannot maintain a relationship with some other person from other village. किंतु वह यह असंभव जान पड़ा. बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर. ततरा बार बार उसकी आंखों के सामने था. सो एवरी टाइम ततरा फेस वॉज कमिंग इन फ्रंट ऑफ हर. न निर्मेश याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ. एंड हाउ इट फेस इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ हर, न निर्मेश मीन्स without blinking. So without blinking, the yatak means someone who is pleading. So a pleader face is coming in front of her and he is waiting for her. So children, today we will read up to this. I have explained you till up to this. In the next session, we will read further what happened after this. So till here, please revise the lesson. If you have any doubt, you can ask me. You can ask me any questions, any meanings which you felt difficult. Please comment down below. Thank you children for watching this. We'll meet in the next session. Bye.